Hello students, our next topic is the heating effect of current. Heating effect of current. Current has some effect like the chemical effect of current, okay, magnetic effect of current. Magnetic effect of current we will study in next chapter, and one is the heating effect of current. Heating effect of current is the generation of heat while flowing of the current, or while flowing through the conductor. When the current flowing through the conductor, the heat is generated. Okay, now how the heat is generated? Now, as take us the simple circuit. This is the resistance, and you have given the some potential. So what will happen? The current will flow and it passes to the resistance. Every instrument has the resistance. जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो फैन हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, उनका अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. Okay, they have their own resistance. Okay, so the current passes through the resistance. Now what is the work of resistance? To oppose the current. Resistance is what? The collision of electrons, and due to this collision of electron, the current opposes. Current जो होगा वो क्या होगा? Oppose होगा. And due to this, what will happen? The current has to do some work. Okay, करंट को क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस में से पास होने के लिए. ठीक है, रेजिस्टेंस में से पास होने के लिए करंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट. ओके, वर्क या एनर्जी. जैसे हीट जो है, आपने पढ़ा होगा स्मॉल क्लासेस में, हीट इज व्हाट? हीट इज द एनर्जी. हीट इज व्हाट? एनर्जी. सो द करंट हैज टू स्पेंड सम एनर्जी. करंट को यहाँ पे कुछ एनर्जी अपनी स्पेंड करनी पड़ेगी टू क्रॉस द रेजिस्टेंस, and that energy is converted into heat. So why the heat is created? The heat is created because of the resistance, mainly because of the resistance. Okay, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि when the current flow through the resistance, the current has to do the work to flow through the resistance, and this work is converted into energy as a heat, and this effect is known as the heating effect of current. इसको हम बोलते हैं heating effect of current. अब इसमें आपको पढ़ना है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि जूल वाज अ साइंटिस्ट हु गेव द हाउ मच द हीट इज फ्लो थ्रू द how much is heat is created, basically how much heat is created when the current flows through the conductor. तो अब ये जो हीट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. ओके, स्टेटमेंट है वो आप लिख लेना. H इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर. मोर इज द करंट, मोर इज द हीट. ओके, जितना ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट क्या होगी यहाँ पे क्रिएट होगी. Then second one, H is proportional to R. More is the resistance, more is the heat. Resistance ज्यादा होगा तो heat भी क्या होगी यहाँ पे ज्यादा होगी. Then H is proportional to T. H is proportional to T. T is here. What is T? T is the time. Time of flow of current. Heat is basically the time of flow of current. ओके, कितनी देर के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट क्या होगी क्रिएट होगी. ओके, ये करंट ज्यादा देर के लिए फ्लो हो रहा है तो हीट भी क्या होगी ज्यादा फ्लो होगी. कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि फैन थोड़ी देर चलने के बाद अगर आप फैन की बॉडी को टच करो तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. तो उसमें क्या क्रिएट हो जाती है? हीट. उसमें क्या क्रिएट हो जाती है? हीट. तो वो क्यों होता है? क्योंकि टाइम जो है वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा यहाँ पे बढ़ गई. करंट इज फ्लोइंग फॉर लॉन्गर टाइम. Okay, so now we will combine this I square RT. इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है. H is equal to I square RT. ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है हीट का, I square RT. इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. H is proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T. So H is equal to I square RT. ओके, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल.
हीट की जो यूनिट हम लेंगे वो क्या लेंगे, वर्क, बिकॉज हीट इज व्हाट, वर्क. सो वर्क इज बेसिकली व्हाट, it is work is basically what, the work is converting into heat. और वर्क की यूनिट आपको मालूम है क्या होती है, जूल. तो इसलिए यहाँ पे भी जो यूनिट होगी दैट विल बी जूल. सो यूनिट ऑफ हीट इज जूल. ठीक है, तो ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, नाउ देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, जो कि हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करते हैं, जिनके लिए हीटिंग इफेक्ट होना जरूरी है. ओके, जैसे बल्ब, थोड़ी देर आपने बल्ब को थोड़ी देर ग्लो करने दिया, आपने बल्ब को टच किया, यू टच द बल्ब, देन यू सी दैट द बल्ब बिकम्स हॉट. व्हाट हैपन्स देयर, द हीट इज क्रिएटेड, बट दिस हीट वी नॉट वांट. बल्ब का काम क्या है, टू गिव द लाइट, बट हीट उसमें क्रिएट हो रही है, अनवांटेडली हीट क्रिएट हो रही है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी. बट सम इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर which require heat to be created more. For example, your heater, electric press, your electric iron, electric toaster. Okay, these instruments are based on the heating effect. तो यहाँ पे आप क्या होना चाहिए कि हीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होना चाहिए. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, और वहाँ पे क्या जरूरी है, हीट का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होना. अब उसमें हम दो चीज तरह से हीट बढ़ा सकते हैं, एक तो आई करंट बढ़ा के और एक रेजिस्टेंस बढ़ा के. ठीक है, करंट बढ़ा के और रेजिस्टेंस बढ़ा के. तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, आपका ज्यादा हो. So for example, we have studied the conductivity and resistivity. Resistivity जिसकी किसकी ज्यादा होती है, एलॉयज की. कंडक्टर्स होता है उनका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है. एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और इंसुलेटर की उनसे ज्यादा होती है. लेकिन इंसुलेटर तो हम यूज कर नहीं सकते, तो हम क्या यूज करते हैं, एलॉय. वी यूज एलॉय. एलॉयज जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, alloys have the more resistance. So in the heating devices we use the alloys. Okay, alloys is the combination of two or more metals. So we use the alloys and we can increase the current. We can increase the current. How we can increase the current? By making such instrument of high power. आपने देखा होगा कि जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनका पावर ज्यादा होता है. ठीक है, उनका पावर जो रहता है, पावर कंजम्पशन वो क्या होता है, ज्यादा होता है. पावर कंजम्पशन इसीलिए ज्यादा रखा जाता है क्योंकि अगर उनका पावर ज्यादा होगा तो उसमें जो करंट रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, वोल्टेज रेटिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग उसका जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, और पावर ज्यादा होगा तो करंट की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी. दैट विल मोस्टली कम अंडर 15 एम्पीयर करंट रेटिंग. सो इफ द मोर करंट विल कम आउट, यहाँ से अगर ज्यादा से ज्यादा करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ज्यादा यदि करंट निकलेगा तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा क्रिएट होगी. तो इन सच इंस्ट्रूमेंट वी मेक द मोर करंट बाय मेकिंग मोर पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, कभी आप देखना आपके जो हीटिंग डिवाइसेस होता है उनका पावर कितना होता है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर पावर इज मोर. ओके, so we can increase the heat by increasing the current and increasing the resistance here. Okay, so these are the two factors, and H is equal to I square RT. This is the Joule's law of heating, and some instruments work on the heating effect. Okay, so you search more instruments and just see how these instruments work. Okay, thank you.